today's convening for you. I'm journalist by profession. On behalf of Council for International Economic Understanding, CIEU, I welcome you all. Good morning to this very, very interesting dialogue on Bazaar Goes Digital, Local Commerce and Local Trust. Today we will be hearing some of the brightest minds giving us 360-degree perspective into the digital commerce in India. We are in a very interesting time when we want everything quick and everything very, very close to our taste and palates. India is in a very unique space. We are already touching $4 trillion economy size. We are one of the very consuming economy with a very robust middle class. That sets the digital commerce into context, where roughly around 8 to 10% is the digital trade we have at present. And we all are keen to see that how this digitalization reaches the bottom of the pyramid. To take the conversation forward, may I request Dr. Ashwini Mahajan, National Co-Convener, Swadeshi Jagran Manch, and member of the Board of Directors at the Council for International Economic Understanding, Shri Bharat Bhushan, he is Sah Sampark Pramukh of RSS, and Shri Amardeep Singh Bhatia, IAS Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, to light the lamp and formally start the today's proceeding. Lamp is in front of you. So the lighting of the lamp resembles that let the darkness be pierced and knowledge be May I request Shekhar Swamiji to also join the dignitaries. Harmiji, you also proceed. So lighting of the lamp resembles a symbolic and a very, very Indian ethos, which resembles that like this lamp is lit, it should give us the brightness and also open us for the knowledge. Let Ma Saraswati bless us all. Thank you. Thank you. Now may I request Dr. Ashwini Mahajan to accompany today's chief guest, Shri Amardeep Singh Bhatia, Secretary DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and Bharat Bhushan ji, Sah Sampark Pramukh, RSS, to the stage. So we are in morning, there should be a thunder of clap to So we are already touching the $4 trillion economy and poised to become $5 trillion economy in very near term. And most probably we will be the third largest economy in 4 to 5 years' time.
can digital commerce help in cutting down a lot of inefficiencies which we have in our markets and in consumption? Today's digital commerce convening will help us in understanding how we can achieve many models in one market. So may I request Dr. Ashni Mahajan to come forward and give his welcome remarks. धन्यवाद अनिलेश जी। आज के इस डिजिटल कॉमर्स कॉन्क्लेव में के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अमरदीप सिंह चोपड़ा जी, भाटिया जी, आदरणीय भारत भूषण जी और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित डिजिटल क्षेत्र के प्रबुद्ध भाई और बहनों, आज हम सब लोग जानते हैं कि डिजिटल कॉमर्स एक रियलिटी है। आज से 20 साल पहले जब व्यापार की कल्पना होती थी तो इसको हम एक लोकल मार्केट में या के व्यापार के रूप में ही इसकी कल्पना करते थे। लेकिन समय बदला, .com का युग आया और हमने देखा कि चाहे नौकरी की तलाश हो या आपको कोई बीमा की पॉलिसी लेनी हो या कोई किराना का सामान लेना हो या आपको अपने घर के काम करने के लिए कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता हो या आपको रेल या वायुयान से कोई टिकट बुक करना हो, हर प्रकार के व्यापार में एक ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने प्रवेश कर लिया। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने धीरे धीरे कर हमारे युवा पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी डिजिटलाइजेशन की एक्सपर्ट थी, धीरे धीरे और उसमें बदलाव आया और एक तरफ सुविधा और दूसरी तरफ सामान सस्ता मिलने की जो इच्छा थी, उसने डिजिटल कॉमर्स को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। लेकिन इस बीच में संकट इस बात का आया कि क्योंकि ये न केवल एक आधुनिक युग है, इसके साथ ही साथ ये इनइक्वालिटीज़ का भी युग है, जिसमें कुछ बड़े कॉरपोरेट्स के पास बहुत पैसा है और उस पैसे के बल पर वो कुछ भी खरीदने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो बाजार ही क्यों ना हो। इसी प्रकार से कुछ बड़ी कंपनियों ने निवेश के माध्यम से बाजार को खरीदने की अपनी कोशिश शुरू की। हम जानते हैं, मैं एक उदाहरण के नाते आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक किताब लिखता हूँ और हमारे वो किताब जो है वो बुक सेलर्स के पास एक्स अमाउंट की आती थी, लेकिन ई कॉमर्स के माध्यम से वो किताब उससे 25% सस्ती घर में डिलीवर होने लग गई। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आपको सबको मालूम है। तो हमारे पब्लिशर ने उनसे पूछा कि आपको तो मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ और आप 25% कैसे बेचते हैं? सो ई कॉमर्स प्लेयर का जवाब था कि दीज आर आवर एक्विजिशन टूल्स। दे वर ट्राइंग टू
acquire the market through their money power, through their money muscles. This cannot be accepted. और एक समय एक ऐसा आया कि हमारे देश का बाजार एक कंपनी के हाथ में एक बहुत बड़ी मात्रा में आ गया और उसमें जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी से संपर्क साधा और उसके 77% शेयर्स उनके पास जो थे वो उसको सौंप दिए। उस कंपनी का नाम बाद में उस कंपनी के साथ जोड़ करके फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट बन गया। उस समय हमारे मन में बहुत पीड़ा थी कि मेरे देश का बाजार कोई कंपनी किसी दूसरे देश में बैठ करके बेच देती है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये तो ई कॉमर्स का युग आ गया है। तो ऐसे में हम जिस विचार परिवार से आते हैं, हमारा सीधा सीधा विचार ये है कि हर प्रकार के व्यवसाय का विकास होना चाहिए। नई प्रौद्योगिकी के साथ, नई टेक्निक के साथ भी चलने की ज़रूरत है, लेकिन जब इसके बारे में सरकार नीति बनाए तो उसके मन में क्या विचार होना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पर, जो हमारा लास्ट मैन इन द क्यू है, उसको उसका फ़ायदा कितना होगा। हम अगर प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो उस प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के साथ क्या केवल कुछ बड़े लोग, कुछ अमीर लोग वही अमीर बनते चले जाएंगे, या गरीब आदमी के लिए भी उसमें कोई स्थान होगा। ऐसे में मुझे याद पड़ता है उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर, ये बात 2018 की है, आदरणीय सुरेश प्रभु जी, वो भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनसे निवेदन किया कि यू आर ए गवर्नमेंट। मैं अमरदीप सिंह जी को निवेदन करूंगा इस मामले में, यू आर ए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कैन डू एनी वंडर्स। फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग 500 crores or 1000 crores to make the lives better for the commoners is nothing, is a peanut. But we can keep these big e-commerce players at bay and make this e-commerce more democratic and more non-exploitative. And we are happy that that dream came true and ONDC took birth. Today, when we are meeting here, आज जब हम बात कर रहे हैं मैनी मॉडल्स वन मार्केट, और वो वन मार्केट क्या है, जो लोकल किराना स्टोर, लोकल रेस्टोरेंट, लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स, लोकल टैक्सी ड्राइवर्स, इन सब को एम्पावर करने वाला हो और उस एम्पावर करने में कोई बिग कैपिटल का रोल ना हो। और जब मैंने आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम उस विचार से आते हैं कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो, लेकिन वो सामान्य जन के जीवन को बेहतर बनाने वाला हो। एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें ऊबर के ड्राइवर से जिस प्रकार से 30% ऊबर कंपनी वसूल लेती है, वो इस प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जो हमारे स्मॉल वेंडर्स, जो हमारे छोटे कारीगर हैं, उनका सामान जब ई कॉमर्स वेबसाइट पर बिकता है तो उनकी इतनी मेहनत की गई कमाई को 50% कोई विदेशी या
बड़ी भारतीय कंपनी लूट कर ले जाए, ये भी ठीक नहीं है। तो हमने इस विषय से संबंधित तज्ञ लोगों को आज निवेदन किया है कि इस कार्यक्रम में शामिल हों और ONDC या अन्य प्रकार के इस प्रकार के जो नॉन एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल्स को हम आगे बढ़ाने का काम करें। और इसी संदर्भ में आज की यह कॉन्क्लेव को आयोजित यहाँ किया गया है। मुझे आशा है कि आज की जो बातचीत होगी, आज का जो विचार विमर्श होगा, आज के जो मंथन होगा, उससे हम अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। Thank you, Dr. Mahajan. Now may I request Bharat Bhushan ji to come forward and give his address. Ladies and gentlemen, Bharat Bhushan ji, and he is mentoring a lot of startups and lot of technology players on various platforms. Bharat Bhushan ji, we are awaiting your insights. Thank you. आदरणीय अमरदीप सिंह भाटिया जी, हमारे मित्र और इस प्लेटफॉर्म के मार्गदर्शक अश्विनी महाजन जी, सामने भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग बैठे हैं। शेखर जी से अभी काफ़ी थॉटफुल बात हुई मेरी, लेकिन पहले मैं अनिलेश जी से शुरू करूंगा। अनिलेश जी ने कहा कि नाम गलत बोला? वो अमरजीत सिंह चोपड़ा बोल रहे थे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सीनियर। हाँ। अनिलेश जी कह रहे थे कि वी आर सून गोइंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो मेरे को लगता है आज का अखबार पढ़ लेंगे तो और अच्छा उनकी जानकारी अपडेट हुई। वी आर ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, क्लैपिंग तो कर ही सकते हैं। वो कैसे है? अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आप हिंदुस्तान में डबल रोटी खरीदने जाते हैं तो शायद आप 5 डबल रोटी खरीद लें। मैंने खरीदी नहीं बहुत दिन से, लेकिन शायद मान लिया 20 रुपये की आती होगी, तो 5 पैकेट खरीदेंगे। और अगर आप USA में जाते हैं तो वो एक ही डबल रोटी आप खरीद पाएंगे, लगभग $1 सवा डॉलर की एक डबल रोटी आती होगी। ऐसा, इसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है, PPP। तो अकॉर्डिंग टू PPP वी ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वी आर, आई जस्ट वांट टू अपडेट ऑल ऑफ यू कि हम लोग 4 ट्रिलियन डॉलर अब हो गए हैं। वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस 4। और अकॉर्डिंग टू PPP वी आर 17.6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। हम ऑलरेडी 17.6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन चुके हैं। वी आर थर्ड लार्जेस्ट। अमेरिका, चाइना और तीसरे नंबर पर हम आ चुके हैं। और आज वो IMF की रिपोर्ट है, ये कोई भारतीय की रिपोर्ट नहीं, किसी RSS वाले की रिपोर्ट नहीं है। तो हाँ, हम लोगों को कहते हैं यार आपको तो हमेशा ही अच्छा अच्छा दिखाई देता है। तो मैंने आज पढ़ी IMF की रिपोर्ट, वो सुबह सुबह ही, तो उसमें लिखा था 2040 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 का एक विजन रखा है पूरे देश के सामने। लेकिन उसमें IMF वाले कह रहे हैं कि 2040 तक वी विल सरपास US इकोनॉमी। अब आप ताली बजा सकते हैं। तो इट्स ए बिग थिंग फॉर अस। बड़ी बात इसलिए है कि जहां से हम चले हैं, चले तो खैर बहुत पहले से थे, उस चलने की बात मैं बाद में बीच में बताऊंगा, लेकिन जहां से हम चले हैं इस यात्रा पर दोबारा से 1947 के बाद में, वहां से हमने बड़ा लंबा सफर तय किया है। अब हम कहां से चले थे वो भी मैं बताता हूं। तो हम दुनिया के नंबर 1 देश थे, हम सोने की चिड़िया थे, हमारे यहाँ पर दूध दही की नदियां बहती थी, ये सब तो कहावतें हैं। लेकिन आज की दुनिया डेटा पे विश्वास करती है, तो मैं डेटा की बात करता हूं। एंगस मेडिसन एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना हो तो आप लिख लीजिए और आज जाके गूगल जरूर करिएगा। एंगस मेडिसन, वो OECD नाम की एक UN की बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसको एक उनमें उस OECD के माध्यम से एक प्रोजेक्ट दिया गया एंगस मेडिसिन को, और
हर प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है कोई ना कोई, तो ये प्रोजेक्ट यूके गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया और उस प्रोजेक्ट का जो थीम था वो था कि टू स्टडी द इकोनॉमी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द लास्ट मिलेनिया, यानी पिछले 1000 सालों में दुनिया भर में अलग अलग इकोनॉमीज कैसी रही। और ब्रिटिश सरकार ने इसलिए किया कि पूरे दुनिया के अंदर उनका सूरज अस्त नहीं होता, तो उनको लगता था एंगस मेडिसिन हमारा ही है, ब्रिटिश है और हम ही फाइनेंस कर रहे हैं, और पिछले इतने सालों में तो हमने ही दुनिया भर में राज किया है, तो ऑब्वियसली सारी दुनिया के अंदर एक रिपोर्ट और डाल देंगे, चलो ब्रिटिश इकोनॉमी नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाँ, उन्होंने बहुत उसको अच्छे से फाइनेंस किया, प्राइवेट जेट दिया गया था, 2001 की बात है ये, और एंगस मेडिसन साहब को बड़ा स्टाफ दिया गया और 7 स्टार्स होटल में वो ठहरते थे, तो इतनी सारी सुख सुविधाएं मिली, तो जो देने वाला होता है उसके प्रति कुछ ऑब्लिगेशन रहती है, तो उनको लगा था कि ये रिपोर्ट हमारे फेवर में आएगी, पर अनफॉर्चुनेटली फॉर देम एंगस मेडिसन एक ईमानदार आदमी निकले और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उन्होंने लिखा है कि फ्रॉम AD 1 to 1750 हिंदुस्तान की इकोनॉमी नंबर 1 की इकोनॉमी रही। 32% थे हम 1AD के अंदर, और 1750 आते आते हम 23-24% रह गए। वी वर द लीडिंग इकोनॉमी, मैं लीडिंग इसलिए बोल रहा हूं कि चाइना की इकोनॉमी हमसे थोड़ा सा उस समय ऊपर निकल चुकी थी, बट वी वर अमंग द टॉप 2 इकोनॉमीज इवन इन 1750। और 1750 तक खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, तैमूरलंग, ये सब हो चुके थे, हिंदुस्तान की लूट हो चुकी थी। उस लूट के बावजूद भी हम 1750 के अंदर दुनिया के 2 नंबर की इकोनॉमी थे। लेकिन जब अंग्रेज गए 1947 के अंदर, वी वर वेरी वेरी पुअर, हम 3% वर्ल्ड जीडीपी के अंदर काउंट करते थे, जबकि हर 6ठा या 7वां आदमी इस दुनिया का हिंदुस्तानी है। उसके बावजूद भी हम दुनिया के 3% इकोनॉमी के अंदर रह गए। तो हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है जब हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं। और हमारे यहां से जो पैसा लूट के ले जाया जा सकता था, आप एक नाम और लिख लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए, विल ड्यूरेंट है उसका नाम। वो एक अमेरिकन हिस्टोरियन था, वो इकोनॉमिस्ट नहीं था, अमेरिकन हिस्टोरियन था। वो भटकते भटकते 1930 के अंदर हिंदुस्तान आ गया, पूरी दुनिया के अंदर घूम रहा था दुनिया भर की हिस्ट्री को लिखने के लिए। विल ड्यूरेंट जब हिंदुस्तान में आया तो उसने कहा कि इस देश को क्या कर दिया है, ये देश स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, हर तरह से इतना उन्नत देश था। और उसने आके देखा और वो उसने हिस्ट्री लिखी है। तो आज जो $45 ट्रिलियन का आंकड़ा कई लोग बोलते हैं, वो विल ड्यूरेंट की किताब में से, द केस फॉर इंडिया, आप लोग देखिएगा, सब गूगल में फ्री ऑफ कॉस्ट टू डाउनलोड अवेलेबल है। तो केस फॉर इंडिया के अंदर उसने लिखा है किस तरह हमको लूटा गया। तो इसलिए हम जहां से चले थे वहां से आज तक की ये जो अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी है। हमने बहुत बड़ा रास्ता तय किया है। आज हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर नंबर 1 बन गए हैं। हमारे यहाँ पर जिस समय हम आज़ाद हुए तो 150 ml पर पर्सन, पर कैपिटा दूध का प्रोडक्शन या कंजम्पशन था। आज वो 500 ml टच कर रहा है, यानी हम पूरे देश के अंदर 70 करोड़ लीटर से ज़्यादा दूध का उत्पादन कर रहे हैं। जबकि ये बात ठीक है कि गायों की संख्या कम हो रही है। गाय कम क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारा जो एग्रीकल्चर है सारा, ट्रैक्टर, उसके बावजूद भी हम दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चीनी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राइस में हम नंबर 2 में हैं, फलों के अंदर नंबर 2 में है, सब्जियों के अंदर नंबर 2 में है। स्टील जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, हम 1 किलो स्टील भी बनाने की स्थिति में नहीं थे। आज हम नंबर 2 हैं। ठीक है, चाइना हमसे बहुत आगे है, हमसे 7-8 टाइम्स आगे है, लेकिन फिर भी हम सब चीजों के अंदर आगे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजों में अभी सफर तय करना बाकी है। मैं शेखर साहब से बात कर रहा था बैठा हुआ कि अभी ये 2047 की तो बात चलती है, उसमें बहुत सारी चीजें करनी हमने छोड़ दी हैं। हम शायद बहुत सारी ऐसी जो बेसिक्स में लगे रहे, रोटी कपड़ा मकान, यही नहीं था। 80 करोड़ लोगों को पिछले 2.5-3 साल के अंदर सरकार ने राशन दिया है, तभी लिए जाकर भूख से मरने, आपने कई लोगों ने, मैंने पढ़ा था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, काला हांडी के अंदर भूख से लोग मरते थे। अब वो स्थिति बंद हो गई है। अब आपने पिछले कोविड के दौरान के बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी भूख से नहीं मरा। गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इतने सारे लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि लोगों को निकम्मा भी बना रही है सरकार, कि फ्री में राशन दे रही है और मनरेगा है, वो एक अलग बहस है, उस पर कभी आप लोग कुछ और विद्वान लोगों से चर्चा करिए। लेकिन ये बात भी सच है कि कम से कम
इज्जत की रोटी मिल रही है। जो दिल्ली के अंदर मेरी फैक्ट्री रही, मैं एक्सपोर्ट में रहा 25 साल तक, मैं जानता हूँ कि किस तरह से मेरे को 5 लोग चाहिए होते थे। हमारे यहाँ वो गारमेंट एक्सपोर्ट के अंदर एक ट्रेंड है, गेट के ऊपर वो लगा दिया जाता है बोर्ड और लिख दिया जाता है 5 धागा काटने वालों की ज़रूरत है, और मेरे यहाँ 50 लोग आ जाते थे और सैलरी 11,000 रुपये मिनिमम वेजेस, वो भी ईमानदारी से अगर कोई दे दे तो, नहीं तो वो एक इंडस्ट्री में सिस्टम चलता है कच्चे वाला यानी उसका नाम ESI PF में कहीं नहीं लिखा जाएगा, तो 8,000 में ही काम करने को तैयार थे। यानी इतनी बुरी हालत थी, तो डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं थी। आज हम उससे बहुत आगे आए हैं, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय ये जो फ्री में राशन दिया गया। खैर एनीवेज, आप लोग सोचेंगे कि डिजिटल कॉमर्स की बात चलनी थी और मैं भारत के इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिस पे हमको काम करना बाकी है। मैं 3-4 एरियाज की बात बताऊंगा। एक है टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। अभी हम अपने आप को सुपर पावर इन सॉफ्टवेयर कहते हैं, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग आज हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज करते हैं, कोई भी या लेट्स से 99% ऑफ देम आर मेड बाय अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज। तो हमको टेक्नोलॉजी पे काम करने की जरूरत है। उसमें टेक्नोलॉजी में जो 3 एरियाज हैं जो मेरे को समझ में आते हैं, आप लोग और सोचिएगा। बेसिक चीजें हमने नहीं की हैं। एक सर्च इंजन हमारे नहीं है। आज हमको गूगल की जरूरत पड़ती है। याहू पहले लोग इस्तेमाल करते थे जब हम छोटे थे। माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सर्च इंजन होता था, लेकिन अभी हम सब कुछ गूगल से सर्च करते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, तो ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा गूगल कर लो। जैसे एक जमाने में हम लोग ये नहीं कहते थे टूथपेस्ट कर ले, हम उठते थे तो माँ कहती थी कॉलगेट कर ले। तो ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं। पर खैर, तो वी शुड हैव आवर ओन सर्च इंजिन्स, वी शुड हैव आवर ओन क्लाउड स्टोरेज। आप में से बहुत सारे लोग क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं सब यहाँ पर, उनको पता होगा क्लाउड नाम की कोई चीज़ है। ये आसमान के अंदर बादल नहीं उड़ रहे हैं, ये हार्ड डिस्क हैं जो अमेरिका के अंदर उन्होंने लगा रखी हैं। और ये सारी हार्ड डिस्क गूगल ने लगाई हैं, AWS ने यानी अमेजॉन ने लगाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने लगाई हैं, या और ओरेकल ने लगा रखी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अजूर है, IBM के क्लाउड्स हैं। तो क्लाउड नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये हार्ड डिस्क लगी हैं बहुत सारी, तो हमको यहाँ अपने यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। तो सर्च इंजन अपने होने चाहिए, ये स्टोरेज अपना होना चाहिए। और तीसरा जो हम सारा दिन इस्तेमाल करते हैं वो है सोशल मीडिया। हम लोग सारा दिन व्हाट्सएप करते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब देखते होंगे, उससे भी ज़्यादा लोग आजकल इंस्टाग्राम पे टाइम लगाते हैं। कितनी अच्छी साइट्स हैं, कितने अच्छे मज़ेदार प्लेटफॉर्म्स हैं ये। लेकिन ये मज़े सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये मज़े उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने ये कंपनीज बनाई हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो एक बार मेरे को कह रहे थे कि दिवाली हमारी नहीं है, हमारा फेस्टिवल नहीं दिवाली, दिवाली तो चीनियों की है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए नहीं है, ये सारे प्लेटफॉर्म अमेरिकन्स के लिए हैं, क्योंकि इसके माध्यम से वो सारा डेटा लेके जा रहे हैं। और आजकल तो बहुत लोग बोलने लग गए हैं, लेकिन 2006 के अंदर एक क्लाइव हम्बी नाम का एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, उसने कहा था डेटा इज न्यू ऑयल। तो आप सोच लीजिए, हम ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर सेलिंग अवर डेटा फॉर फ्री, तो वी शुड वेक अप टू दिस। और AWS यानी अमेजॉन, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चिंता इस प्लेटफॉर्म पर मेरे को लगता है दिन भर हम व्यक्त करेंगे, वो AWS 60% से ज़्यादा प्रॉफिट अपना, अमेजॉन अपना 60% से ज़्यादा प्रॉफिट AWS से कमा रहा है। ये जिस चीज़ की चिंता करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि अमेजॉन यहाँ के रिटेल पर कब्जा कर रहा है, वो सच है, लेकिन हमारे डेटा को लेके जा रहा है। और चाइनीज़ इस बारे में बहुत पहले से ही जागरूक हो गए थे। उन्होंने अलीबाबा, टेंसेंट, हुवाई क्लाउड, ये पहले से उनका डाटा उनके पास है। और सर्च इंजन उनके बाइडू है, सोगोऊ नाम भी बोलना मुश्किल है, लेकिन शेनमा, योदाऊ, और उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम चलाते हैं व्हाट्सएप। आप में से कुछ लोग अगर चाइना गए होंगे तो उनको पता होगा, वहाँ WeChat चलता है। वो ये बोलते हैं, हम बोलते हैं व्हाट्सएप कर दे, बोलते हैं WeChat कर दे। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मैं व्हाट्सएप कर सकता हूँ। हमारे कुछ चाइनीज़ कस्टमर्स थे, कहते नहीं नहीं हमारे यहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता है, करना था तो मेरे को WeChat डाउनलोड करना पड़ा और WeChat करता था मैं उनसे।
वाइबू है, हमारे यहाँ ट्विटर यूज करते हैं, उन्होंने वाइबू बना दिया। हम टिकटॉक अब नहीं यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने डॉइविन बनाया और बाइट डांस और टिकटॉक उनकी कंपनीज हैं। हम लोग इंस्टाग्राम करते हैं, वो कुशाऊ करते हैं। हम लोग कोरा यूज करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो। वो जीहू यूज करते हैं, उन्होंने बिली, क्यू, माई, हम लिंक्डइन यूज करते हैं, वो माई यूज करते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन्होंने अपने बना रखे, हम क्यों नहीं बना सकते हैं? अभिशेखर जी कह रहे थे कि हम वी टेक प्राइड, गूगल का सीईओ भारतीय है, अपना माइक्रोसॉफ्ट का नडेला भारतीय है, और ऑल दीज पीपल ये भारतीय हैं, लेकिन भारतीय फाउंडर नहीं है, नौकरी कर रहे हैं वहां पर। अब हम नौकरी करने वाले बनने जा रहे हैं। जो यहां पर इस सभागार के अंदर लोग बैठे हैं, वो लोग इसलिए चिंता कर रहे हैं कि हमारे यहां का हर रिटेलर थोड़े दिन बाद में मोटरसाइकिल लेकर ई कॉमर्स डिलीवरी वाला बनने वाला है। अगर हमने अमेजॉन या इन जायंट्स को नहीं रोका तो दे आर गोइंग टू कैप्चर द होल मार्केट, दे आर ऑलरेडी कैप्चरिंग। और ये कोई भला करने के लिए नहीं आ रहा है हिंदुस्तान में। सब छोटे छोटे दुकानदारों को मैं सशक्त बनाऊंगा, उनको एम्पावर, इट इज ऑल फार्स। जहां से ये पैदा हुए हैं वहीं पर इन्होंने लाखों लोगों को रोजगार से बाहर कर दिया है। अब अमेरिका के डेटा पढ़ लीजिए, पिछले 25 साल के अंदर 2 लाख से ज्यादा दुकानदार, मॉम एंड पॉप स्टोर कहते हैं वहां पर, छोटे छोटे दुकानें, जैसे हमारे यहाँ घर के लोग मिलकर एक दुकान चलाते हैं, वहां भी मॉम एंड पॉप स्टोर होते थे, लेकिन वो सारे बंद हो गए। वॉलमार्ट ने भी बंद किए। ये सारे जो जायंट्स है, दे आर ओन टू फॉर देमसेल्व्स ओनली। एक बात पक्का मान लीजिए, किसी भी आप यूरोपियन से, अमेरिकन से डील करेंगे तो एक बात पक्की याद रखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वहां केवल सबसे ताकतवर ही जिंदा रहता है। अदर्स डू नॉट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। फॉर अस, फॉर देम, वी आर जस्ट फॉडर्स। हम सिर्फ उनके लिए भोजन हैं। जिस दिन तक हमारी आवश्यकता हमको जिंदा रखेंगे, जिस दिन नहीं, दे विल ईट अस अप। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी जो जाते हैं, दे आर चीप लेबर। आई एम सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट, मैं बहुत सख्त शब्दों में बात कर रहा हूं, लेकिन वो हमको इसी तरह ट्रीट करते हैं। तो वी हैव टू स्टैंड अप इन अवर ओन राइट। हमको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये वो बाई बॉक्स लगा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई रिटेलर, यहां पे कुछ लोग बैठे होंगे, अमेज़न कब बाई बॉक्स लगा देगा, कब हटा देगा, यू डोंट नो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कल बिक रहा था, आज बिकना बंद क्यों हो गया। तो दिस इज देयर मोनोपोली। दे आर क्रिएटिंग मोनोपोली एंड दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ बिग मोनोपोली इन इंडियन मार्केट। कोई प्राइसिंग फेयर नहीं है। वो जो अभी अश्विनी जी बता रहे थे, किसी चीज की कीमत वो लागत से कम में बेच देते हैं। डिलीवरी उनके ट्रक्स के द्वारा कराई जानी चाहिए। मैं क्योंकि ऐसे ट्रेड में था जिसमें हमारे बहुत सारे दोस्त इस सब धंधे में पड़ गए, तो वे मेरे को बताते थे, अरे यार हमको तो फुलफिल्ड बाय अमेज़न में ही लगाना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट, उसके बिना हमारी वो रेटिंग ऊपर नहीं आएगी। लेकिन तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, और दे वुड ऑलवेज शोकेस देयर ओन प्रायोरिटी कंपनीज ऑन द टॉप। और उनकी प्रायोरिटी कंपनीज के मैं नाम बताता हूं आपको। क्लाउडटेल, अपारियो रिटेल, आपने इन सब के नाम सुनेंगे। कोको ब्लू, डॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, वीआरपी टेलीमेटिक्स, रॉकेट कॉमर्स, अमेज़न बेसिक्स, सोलिम्बो, सिंबल, ये सब कंपनियां अमेज़न की ही हैं। कोई अच्छा प्रोडक्ट उनको दिखता है, दे टेक इट ओवर। वो अपने एक चूजन वेंडर से जाके बनवाते हैं और फिर सारा का सारा धंधा खुद ही करते हैं। वी हैव टू वेक अप। तो ओएनडीसी ये सिर्फ एक बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भारत की सोवरेनिटी को बचाने का प्लेटफॉर्म है। आप इसको छोटा मत समझिए। हम भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1947 में एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये आज 2024-25 की जो लड़ाई है, ये उतनी महत्वपूर्ण लड़ाई है। अगर हम आज नहीं जागे तो फिर हम हमेशा के लिए इनके गुलाम रहेंगे। और इसलिए वी हैव टू वेक अप। हमारा बाजार कितना है वो सब डेटाज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। कि अभी बता रहे थे कि 7%, 13% तक ई कॉमर्स हो चुका है। एंड 2030, another 4 years from now, we are going to be hitting 21% in e-commerce. हर 5वां सामान जो बिकेगा वो ई कॉमर्स में बिकेगा। मैं पंजाब से आता हूं, भाटिया साहब भी, क्या परिवार भी मेरे को लगता है पंजाब से आया होगा। तो पार्टीशन से पहले कुछ लोग कहते थे, कुछ लीडर्स, अरे देश बट रहा है, यहाँ पे कत्लेआम हो जाएगा, तुम जाओ यहाँ से छोड़ के चले जाओ।
हमारे लोग कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, सब ठीक ठाक रहेगा, नथिंग्स गोइंग टू हैपन। कुछ लोग चले गए जो शायद खतरे को भांपते थे, वो चले गए और शायद उनके परिवार सेफ रहे। हम लोगों के परिवार उन लोगों में थे जिन्होंने शायद कुछ नेताओं की बातों पर विश्वास किया, और हम लोग, हमारे दादाजी वगैरह वहाँ बैठे रहे और मैंने उनकी कहानियाँ सुनी हैं। फॉर्चुनेटली वो जिंदा वापस आ गए और हाथ के अंदर कुछ सोना भी लेके आए, तो यहाँ पे उन्होंने अपना काम धंधा एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन जो लोग वहाँ से लूट पिट के आए, उनके घर के लोग मारे गए, उनसी कहानियाँ सुनिए आप। अगर हम आज नहीं जागे तो मेरे को वही सीन याद आ रहा है कि शायद हम फिर वापस उस हालात में आ जाएंगे। इसलिए इट्स ए वेकअप कॉल। अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंख बंद कर लेगा तो फिर ये बिल्ली का कसूर नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो एनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स की है। वी हैव टू गो एंड एजुकेट द रिटेलर्स। मैं बहुत सारे मार्केट के अंदर रिटेलर से बात करता हूं, मैंने कहा यार तुम अपने 5-6 लोग रख लो ना डिलीवरी के लिए। नहीं साहब हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है। दे आर जस्ट सिटिंग प्रिटी एंड क्वाइट एंड लेड बैक। एक एक करके बिजनेस को खाया जा रहा है। अगर ओएनडीसी अपना प्लेटफॉर्म बनाने के साथ साथ इन रिटेलर्स को एजुकेट भी करे, गो एंड सेंसिटाइज देम। टीम छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा है। मेरे को लगता है रिटेलर्स को जाके सेंसिटाइज करना चाहिए कि भैया जागो, अपना हाइपर लोकल जो सिस्टम यहाँ पे बनाया है उसको अडॉप्ट करो तो हम बचेंगे। मेरे को लगता है ओएनडीसी के इस एफर्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। आप धर्म का, देश का और देश को पुनः एक स्वतंत्रता आंदोलन का काम कर रहे हैं, इसके लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भूषण जी। भरत भूषण जी, आपको थोड़ा जान के अच्छा लगेगा कि दुनिया में आज की डेट में 4 मॉडल्स जो हैं ई कॉमर्स को लेकर चल रहे हैं। अमेरिका जो इसका जनक है, वो जो कैश बर्निंग मॉडल है वो पूरी दुनिया में उसको पुश करता है टू मार्केट को कैप्चर करने के लिए। दूसरा है यूरोप का, जहाँ ये कट कॉपी पेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पे हमने उसके रेप्रिकॉशंस देखे हैं कि वहाँ पे जो एस्टैब्लिश और कन्वेंशनल इकोनॉमीज़ हैं उसमें रोष है, क्योंकि वैसे भी यूरोप जो एक थोड़ा सोशलिस्ट टाइप के माइंडसेट के वहाँ लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट जो है आपस में दिखता है। तीसरा मॉडल जो आपने बताया चाइना का, कि जिन्होंने कट कॉपी पेस्ट तो किया है पर उसकी रीब्रांडिंग मेड इन चाइना कर ली है सारा अमेरिकन सिस्टम ही, और उसको उन्होंने अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप कहें कि मैं लिबर्टी लूँ वर्ड की, तो चोरी करके अपने नाम पे चलाना शुरू कर दिया है। चौथा मॉडल जो है, जो भारत ट्राई कर रहा है, और ये हम लोग उसको डिजिटल फेडरलिज्म कहते हैं, कि जिसमें सहकारिता को डिजिटलाइज किया जा रहा है, जिसको माननीय होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, उनकी मिनिस्ट्री जो है एंकर कर रही है। सहकार टैक्सी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है वो सामने लेके आए हैं। नम्मा यात्री जो आज यहाँ पे भी हम लोग दिखाएंगे। जो साथ में ओएनडीसी जो है एक उसमें बहुत बड़ा एनेबलर है, कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो असली काम करने वाला है, उसको डिजिटल इकॉनमी के साथ जोड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, कम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, पर एफर्ट जो है वो जारी रहेगा। और इन सारे मॉडल्स को जो आदमी बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और गवर्न कर रहा है, मैं उस आदमी को सादर आमंत्रण देता हूँ। श्री अमरदीप सिंह भाटिया, IAS सेक्रेटरी, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। थंडर ऑफ अप्लॉज प्लीज। धन्यवाद। Dignitaries on the dais, members in the audience. Today, this seminar is, or this workshop is on ONDC. But before talking on that, although my predecessors have talked on all aspects in detail, but let me also try to give my own perspective a little bit. Indian economy, all of us know, and also give some data. All of us know, as was mentioned, we have around $4.19 trillion
already we are clocking that figure, and if we have to if we work as per Honorable Prime Minister's vision, if we put in the hard work needed, we should be touching 30 trillion by 2047. And that's a target which is a joint target of the government and the people. It's an aspiration which has to be met. Now, we have a lot of factors which are favoring us at the moment: the large population, the young population that we have. Almost 1 billion of our population, of the 1.4 billion, is working age population. I think the largest proportion in the world. It's not only working population, but also a population whose income is increasing. Whose aspirations are increasing. So it's creating a lot of demand also. But on the supply side, they are also the workers. They are also the skilled workforce that we have, who can work and produce, from iPhones to also designing iPhones, who are good at making auto components as well as manufacturing the most complex of automobiles also. But the per capita income we have to recognize that the per capita income, we are still much lower than the developed world. And that's where the Viksit Bharat concept comes in. If we have to reach that developed economy stage, our per capita income has to grow. So that's what, in order to do that, we are all doing something or the other. In DPIIT also, we do a lot of things. We promote startups, we do EODB, ease of doing business. Mr. Sharad Sharma is here. He's been pushing us, and we've been helping each other in driving this agenda across the government and across the states. We also do a lot of policies, whether it is PLI, whether it is region-specific policies aimed at promoting industries. We also look at logistics. How do you reduce cost of logistics? We also look at IP, the intellectual property framework. How do you protect, how do you motivate innovation in the country? So that's something we do in DPIIT, and along with our sister departments, try to push the buttons here and there so that we keep moving towards the goal of becoming Viksit Bharat by 2047. Retail industry is an extremely important trade, and as part of the trade, retail industry is an extremely important part of the economy. We've seen robust growth in this sector also. We already, I think, are clocking around $1 trillion or so in retail trade, and we're growing robustly, I think more than 10%, and we're projected to grow more than 10% on account of the demand factors driven by our large population and other, as I mentioned. Now, this large market definitely therefore attracts players from across the world to participate in the retail trade. This large market should also motivate our people to launch new brands, to grow big, to bring in new technologies, and also to bring in efficiencies so that they grow big, they are able to
not only because if retail trade has to grow, it has to be a win-win. The consumer also has to benefit, as well as the retail trader has to benefit. When one goes to the market, I keep interacting local market traders. So not as secretary, but as a commoner. So the voice one hears is that our youngsters don't want to do retail trade. They don't want to be in the trade business. They want to move away. And we are, yes, e-commerce, that's the next topic. E-commerce is impacting us. It'll have to be there. It's a thing which we have to live with. But we don't see much growth happening in retail trade. Now, e-commerce is one of the big factors which is touted. And why has e-commerce come in as a big factor is something I think we need to look at. If one goes back, it's the service, convenience of service is something I think we have to look at. Go back to that old time. Some of you will remember, if one had to travel in the 80s, 70s or 80s, if one had to book a train ticket, one had to book the train long time back, stand in long queues, and then also it was all very uncertain. One had to do all kind of things to get a train ticket. But look at the convenience which came in once computerization was brought in by the railways. And that slowly, first the computerization came. There were those computerized counters from where you can book tickets. Then IRCTC came in. Then you could book tickets online. All your travel also became online. The convenience, you don't need to go. Earlier the ticket used to come, even if you booked online, it used to come through a courier. Then you could generate it online. Now you don't need to print it also. It's all available on your smartphone. So that's the transition which has taken place. The convenience of a smartphone, the progress of technology, one can't stop and one has to live with. So that convenience, whether it is in railways or in other areas, books, it was mentioned, although cost is one of the factors, but access is the other factor which is also extremely important, because of which e-commerce is going to stay. Look at the music. College time, I remember, in order to listen to music, used to have cassettes, get music copied into cassettes. Sometimes music was not available. India Today came up with that series of classical music records. Then CDs came in. Now you can stream anything, anywhere, from anywhere in the world. Large repositories of music is available, accessible to all of you. So that convenience you can't wish away. And as an aside, like mentioned by Mr. Bharat Bhushan, it's not only search engines or clouds, but look at the other services. We need to progress a lot. We need to look at maps, look at email. We had Rediff Mail. That also, I don't know how many of us use. Majority of us uses Google or Hotmail. Look at maps. Google Maps dominates. Look at AI. There's no AI app, Indian app. Look at social media, he mentioned, cloud storage, he mentioned. You continue, there are so many technology, these are applications. Technology not only in service provision, but also
in product manufacturing is something we need to work a lot about. We need to work a lot. Coming back to e-commerce, one of the concerns has always been the misuse, like was mentioned, that you undercut other players, you reduce cost, take losses in the beginning so that you acquire market share. And then later on, once everyone is out of the market, then you start exercising your monopoly powers because nobody is there to compete with you. But in order to deal with these practices, we have laws we have a lot of laws in place. We have the Consumer Protection Act, which has come up specifically with e-commerce rules. We have our FDI policy and FEMA, which is investigated by our investigation agencies. We have the Info Technology Act, which has the intermediary rules which are there, which are applicable on the marketplace providers also. We have the competition law also, which is a strong enough law and can impose huge penalties on those who abuse markets, abuse their power in the markets, abuse their deep pockets, use their deep pockets to free market policies or try to exercise monopolistic powers. The use of these laws is in the hand of all of you. These instruments are available. The right, if any of the players abuses the law, the same has to be pointed out to the regulator so that they start their proceedings and act against the perpetrator of the wrongdoings. So this is something which is a power which is with all of you, with the associations. But in addition to the non-exploitative part, we also have to enable to ensure that our retail is having a level playing field. And towards this direction is what ONDC has come in. And it's something which is known to all of you, but let me just set the context also. So you have a protocol. What does these big e-commerce players do? They have everything proprietary. If you have to launch into it, you get wedded in. It's a moat, as they say, which is created. You can't then go out. You have to adhere to their framework only. You have to you have to give a certain percentage commission, which is fixed by them. You have to adhere to so many other conditions, including the logistics player, as somebody said, some verified service or whatever. So all those conditions are set by that e-commerce provider. ONDC doesn't do that. ONDC has different set of conditions which are very open. You have a different buyer's app, you have a different seller app, you have transporter logistics separately available, you have payment gateway separately available, you have cataloging separately possible, you have order processing possible, and all of this, the choice is available with the retailer or the trader or the producer. We've done a commendable amount of work in making it popular also, especially in tier 2 and 3 cities. We have successes in the metro cities. That Namo Yatri is something which is touted. We have, in fact, 1.5 lakh plus retail sellers from 630 cities who are already onboarded on ONDC, which is a good
statistic, and they are delivering to 1200 plus cities in the country. Pan-India access. As on 2020, July 2025, we had 1.8 crore transactions on the ONDC network, 230 plus seller apps and 140 plus buyer apps. And it's not only Namo Yatri, but also the FPOs, the small food processing organizations which have been set up by the ministry, who've been able to access markets, who've been able to access markets beyond their small local retail, local jurisdictions, which they would have found otherwise very difficult to access. We handicraft person, we have craftsmen who are weaving their sarees, who are using this network to reach all India. Look at the potential it's creating. And if we are able to do it on a global scale, look at the market access which will be available to our artisans, to our handicrafts men. But I would also like to take back to the pre-COVID times or COVID times, where a lot of initiatives were started at the state government's level. I am from a cadre, Nagaland cadre. When I rejoined after completing my tenure in center, there was an initiative, local initiative, which was started, local e-commerce initiative in order to promote retail trade locally. It had a success to a certain extent, but look at the possibilities here. This protocol is available, and hand-holding is done in cataloging, in making seller apps, buyer apps, and this can be used effectively by small associations or small bodies at the tier 2, tier 3 city level, or at the state level also, to build their own apps, to develop the local, to make available in tier 2 city, for example, a retailer can access the larger city instead of the local, that small locality where he is based. Using this app, he will be able to. So look at the possibility it creates. And ONDC is doing a lot of things to ensure that whatever issues are there, these are resolved at a fast pace, because there's a new platform, you learn, and this is something which every platform does, and they have a very strong team which continues to evolve and continues to make improvements on the facilities being provided on using these protocols. So my request to all of you is to promote this, and have a very ambitious target for all of us, so that we increase the number of retail stores on the ONDC app. We have 1.5 lakh retail stores. I don't know how many retailers will be there in the entire country, but we should at least try to double it in the next 1 year or so. From 1.5 lakh plus, we should at least try to 3 crores. So we should at least try to double this 1.5 lakh figure to at least 3 lakh in the next 1 year, if not more. If we can do more, I think it'll be much better. You have better sense of what can be done. But I think this is something I'll be looking at as an outcome, as something which you will contribute towards the retailers, towards the traders, as well as towards increasing the usage of ONDC in the country. I'm very sure during the day there are many speakers, many experts who are going to speak. You'll all learn much better and go back much more empowered, and also ensure that ONDC as well as
retail trade is able to use e-commerce to not only grow the retailers, but also from among the retailers have success stories of scale coming up. If we have to grow big, we have to have those success stories of scale also, which are able to not only cater to our domestic demand, but also able to grow globally so that they can take on these biggies. Unless you have scale, you'll not be able to take on the big players. We have to have that scale also. So I'm very sure during your deliberation, you'll be able to come up with something good. Thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you, Bhatia Saab. With this, may I request Mr. Shekhar Swamiji to come forward and help us in felicitating the gentleman. Shekhar Swamiji. So we have selected a Punjab-based artist for all three Punjabis. So this is a special Amritsar art. And Bhatia ji, you'll be happy to know that 11 fresh guys have been onboarded for today's convening. So they'll be joining the digital commerce for the first time, and most of them are artisans. Mr. Bharat Bhushan. And Dr. Ashwini Mahajan. Ladies and gentlemen, with this, we are concluding the inaugural session. And with your thunder of applause, we pay our gratitude to Shri Bhatia, Shri Bharat Bhushan, and Dr. Ashwini Mahajan.